class. This is our third class. Third class on your paper BHIC 102. The previous class, our point of discussion was on the early civilization in the proto-historic period of the world, that is the Egyptian civilization. And I have already told you that the country of Egypt, which is situated on the north of the continent of Africa, in Odia, this country of Egypt is called as Misr. So Misr, its English name is Egypt. They are now started an ancient civilization, and the antiquity of this civilization can be traced back to 5,000 years back. तेणु यार जो प्राचीनत्वटा को आमे अंततः ख्रीष्टपूर्व 5,000 वर्ष कालखंड मध्यरे निर्मित करा जायछि. The name of your paper is Social Formation and the Cultural Patterns of the Ancient World. तमरो जो पेपर मैटर you can get two parts. One is your social formation. Social formation means समाज गठन प्रक्रिया. The second part is your cultural pattern बा सांस्कृतिक प्रतिरूप. तेणु आमे जेतेबेले जोटा ही पढुची in ancient world, we will have the focus on two parts. One is the social formation, another is the cultural pattern. In the previous class, when I was starting, जेतेबेले मु आरंभ करथिली मिसरीय सभ्यता, हमर गत क्लास रे हमर डिस्कशन न परिधि थिला समाज गठन प्रक्रिया रे how there was the political organization केमति ताकर राजनैतिक संगठन एवं एई परिप्रेक्षी रे मु तुमको कहिथिली चारोटी जुगर अवस्थिति, the old kingdom, middle kingdom, the empire and the age of foreign invasion. एगुडा हमें डिस्कशन करिचे. We had discussed about their society. Society रे केमिति थिला स्तर विन्यास बा social stratification. तापर हम माने आसुचु कोठी की ना तांकर अर्थनैतिक जीवन बा their economic life. We have already covered all these things. Then we have covered the first part of Egyptian civilization, that is their social formation. Now in today's class, our point of discussion will mainly center round on what? It will center round on the cultural pattern. तेणु ए जो सभ्यता ए जो प्राचीन विश्व रे जो प्राचीन सभ्यता की जोटी आरंभ हेतिला यार सांस्कृतिक अभिवृद्धि बा सांस्कृतिक प्रतिरूप किपरि भाबरे थिला कोन कोन से माने पृथ्वी रो विश्व संस्कृति को समानकर अवदान कोन केमिति उन्नत थिला समानकर सांस्कृतिक जीवन ता ऊपरे इन टुडेस क्लास वी शैल मेक ए डिटेल description बा गोटे डिटेल हमें गोटे डिस्कशन बा आलोचना करिबा. एवं एई परिप्रेक्षी रे द प्रथम कथाटा मु तुमको जोटा आगु भी कहिथिली जे एई सभ्यता को विशेष भाबरे गुरुत्व दिया जाय एथि पई जे एई सभ्यता रु प्रागैतिहासिक युगर समाप्ति घटिथिला. The prehistoric age came to an end with the discovery of with the invention of writing. कौन है ना ए पर्यंत हम जो प्रागैतिहासिक इतिहास पढुथिले the old stone age, new stone age, mesolithic age एगुडा जो पढुथिले middle stone age एगुडा सबुथिरे तांकर लेखन प्रणाली नथिला. किंतु वर्तमान प्राचीन मिस्र देशर लोक माने आरंभ कले प्रथम थर पई जो लेखन प्रणाली सेथि पई प्रागैतिहासिक युगर का समाप्ति घटी वर्तमान आसिला प्रत्न ऐतिहासिक युग. एवं से माने जो लेखन प्रणाली आरंभ कले इट इज नोन एज हाइरोग्राफी बा ताको हमें कहि परिबा छवि लिपि बा पवित्र लिपि. एवं ए दुईटी कोन छवि लिपि ना लेखा मनुष्य लेखे काहे की ना मनर भाव प्रकाश करिबा पाई.
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଭାବଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଧର ମୁଁ ଗ୍ଲାସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗିଲାସର ଗୋଟେ ଛବି ଆଙ୍କିବି, ଆଙ୍କିକି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଦେଖେଇଲେ ନା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଜଣେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। এটা ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କାରଣ ଛବି ଆଙ୍କି ତମେ ତମର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର ଲିପି କୁହାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ, ପିରାମିଡ ଇଏରେ ସେମାନେ ଏଇ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଦିତ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏକୁ ପବିତ୍ର ଲିପି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଥର ତମେ ଛବି ଆଙ୍କିବ, ଯେତେ ଆଙ୍କିବ ଏଇ କଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ସହିତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ the system of hieroglyphic writing they now wanted to make it bit simpler, ସରଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କଣ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛବି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ଆଣିଲେ। କୋଉଠି ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ, ଏବଂ କଣ ହେଲା ନା ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ସହଜ ସାଧ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାବ ସଂକେତ, ଛବି ସଂକେତ, ତାପରେ ଆସିଛି ଧ୍ୱନି ସଂକେତ, ଏଗୁଡା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି, ସେଇଟା ଆସିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆମର ଯେମିତି ଅ ଆ ଏଗୁଡା ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, କ ଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଗୁଡିକ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ କନସୋନାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଭାୱେଲ୍ସ। ସବୁ ତ ହେଲା, ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ କେମିତି? ନା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଦରକାର ନା, ମିଶରୀୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ପେପିରସ୍। What is papyrus? Papyrus is the name of a tree. ମିଶର ନଦୀ, ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ପେପିରାସ ଗଛ ସେଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପେପିରାସ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଆଣି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ତାକୁ ଯୋଡି ତା ଉପରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କାଠ କଲମ, 10 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର ଗୋଟେ ମୁନିଆ କାଠ, ସେଟା ହେଲା କଲମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରୁଥିଲା। କାଳି ଓ କାଳି ଦେୱାତ, କାଳିଟା କେମିତି ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପତ୍ରର ରସରେ ଅଠା ମିଶେଇ ସେଥିରେ ଏଇ ତମର ରୋଷେଇର କାଳି ତାକୁ ମିଶେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଆତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପାତ୍ରରେ ରଖୁଥିଲେ, ସେଟା କାଳି ଦୁଆତ ପାତ୍ର ସର୍ଭ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆସିଗଲା କଣ ନା ପେପିରସର ସେଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଶୁଖେଇ ସେମାନେ କାଗଜ ଟାଇପର କରିକି ତା ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେଇ ପେପିରସ ଫର୍ଦ୍ଦରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପେପର ବା କାଗଜ ଆସିଲା, ସେଟା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପେପିରସଟି ଯେହେତୁ ଫର୍ଦ୍ଦ, ପେପିରସ ଗଛର ଫର୍ଦ୍ଦରୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପେପିରସରୁ ଆମେ କହୁ କଣ ନା ପେପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ହଉଛି ପେପର, ତେଣୁ ପେପିରସରୁ ପେପର। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା କଣ ନା ପେପିରସ, ତାପରେ ଆସିଲା ରିଡ୍ ପେନ୍, ତାପରେ ଇଙ୍କ ପଟ୍, ଏବଂ ଅନେକ ଛାଡେ କଳା ଛଡା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦାନି ଗୋଟେ ବି ରଖୁଥିଲେ, ପ୍ୟାଲେଟ, କଳା ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଏଗୁଡାକୁ କରିକି ସେଇମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତମେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯିବ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ପେପିରସ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ସେମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ ପୁସ୍ତକକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଏବଂ ଗୋଡେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଟିର ଖୋଳ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁରେଇ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସେମିତି ଏକ ପେପିରସର ନିର୍ମିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି କେବେ ଯାଅ ସେ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକ। ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିଗଲା, ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆସିଗଲା, ସୁଯୋଗ ବି ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ ଲୋକ ତ ବେଶୀ ନ ଲେଖୁଥିଲେ, ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ମିଶରୀୟ ସମାଜରେ, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହାଇରୋଗ୍ରାଫିକ ରାଇଟିଂ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ କଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବା
पाठागार कहि पारु एवं सेही पाठागार रे कोन होतिला ना धर्मीय पुस्तक व्यतीत भ्रमण कहानी विज्ञान पुस्तक गणित शास्त्र भेषज विज्ञान उपर मध्य अनेक उपादेय पुस्तक से माने रचना करथिले मिछड़िया मानक गद्य साहित्य र केतोटी कृति मु निश्चय उल्लेख कले त मानक जानिबा को आउरी भलो लागिबो जे द स्टोरी ऑफ द शिपरेड सेलर्स जहार ओडिया हला ध्वस्त जहाजर नाविकर कहानी सिने ए टेल ऑफ सिनुहे रो कहानी द टेल ऑफ ओनुपु एंड बिटीयू दुईटा लोकर ताकर कहानी द टेल ऑफ लव एंड पीस एंड बागबी कुशकर कहानी द टेल ऑफ टू ब्रदर्स टेल माने स्टोरी द टेल ऑफ डूम्ड प्रिंस अभागा राजपुत्र को कहानी एगुडा थिला कोन ताकर गद्य साहित्य रो किछि विशिष्ट कृति धर्म साहित्य ए सब व्यतीत मध्य ए जो भ्रमण कहानी बा अलौकिक अतिभौतिक कहानी व्यतीत मध्य से माने किछि धर्मीय पुस्तक रचना करथिले जहा ए पर्यंत विभिन्न संग्रहालय रे संरक्षित हेइ अछि द पिरामिड टेक्स्ट कफिन टेक्स्ट पिरामिड पाठ्य सभाधार पाठ्य द बुक ऑफ डेड द बुक ऑफ गेट्स कोन हला ना बुक ऑफ डेड द मृत व्यक्तिंकर पुस्तक प्रवेश पत्र पुस्तक ए सब मध्य हम माने देखिबा को पाउछु एहा छडा तांकर सूर्य देवता तमर प्राचीन राज्य जुगरे बा ओल्ड किंगडम जुगरे जो मेम्फिस नगरी ताकर राजधानी थिला सेठी सूर्य को पूजा करा होथिला कोन कोना रे ना आटन नारे तापरे तबले साम्राज्य जुग आसिला से समय रे सूर्य को पूजा करा गला रा तनु आटन और रा को मिसी बहुत सूर्य स्तुति हमर हस्तगत होईची एवं सेथरे जे फेरो अखनाटन को सूर्य स्तुति मु तुमको कहि धर्म पढैला बेले ता भितर हमें गोटे अनुवाद मु तुमको कहि पारे सौंदर्यर उत्कर्षर तमे ही प्रतीक काहा को कहउचंती सूर्य को तब रश्मि रेखा विकसित चौदिग हे सूर्य देव अस्ताचले तमरी महिमा प्रेम रे बांधी रख सृष्टि परिसीमा सुदूर अवस्थिति भूतले प्रभाव जीवन छंदमान मध्य तुम स्थान तेणु सूर्य को वंदना करी बहुत प्रकार स्तुति से समय रचित होइछि जहार गोटे उदाहरण हम तुम मानकु देली ये तो गला लेखन प्रणाली आसीबा परी साहित्यर तांकर साहित्यिक विभव कथा वर्तमान में आसीबा विज्ञान को से समय रे मध्य प्राचीन विश्वर ए विषय माने जो माने सभ्यतार आरंभ करथिले विषय सभ्यतार आरंभ करथिले आमे देखुछु कोन ना व्यवहारिक विज्ञान और तात्विक विज्ञान रे जेमिति ज्योतिर्विज्ञान एस्ट्रोनॉमी गणित तमर मैथमेटिक्स ज्योमेट्री हला ज्यामिति भेषज विज्ञान मेडिकल साइंस विभिन्न क्षेत्र रे मध्य तांकर किछि उन्नति परिलक्षित हुए कोन हले ना ज्योतिर्विज्ञान कोटा ना एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज से माने सूर्यंकर गति पथ चंद्र तारा ग्रह नक्षत्रंकर गति पथ से माने भलो भाव रे अध्ययन करी गोटे कैलेंडर प्रस्तुत करथिले जोटा को कहै जाय सूर्यंक गतिविधि ऊपर सौर वर्ष जोटा को हम कहै जाय सोलार कैलेंडर बा सर्वप्रथम दिन पंजिका जोथिरे कि वर्षर 365 दिन 12 दिन माने गोटे मास यदि 30 दिन करी हुए 12 मास रे हला कोन ना 360 दिन बाकी 5 दिन से माने कोन करथिले ना छुट्टी दिन हिसाब रे व्यवहार करथिले पिला माने आमे वर्तमान जो कैलेंडर ता व्यवहार करू ए कैलेंडर ता को कहे जाय ग्रेगोरियन कैलेंडर जो त्रयोदश ग्रेगोरी बोली जाने थिले पोप से जो पोप थिले तांको द्वारा प्रस्तुत जो कैलेंडर बा दिन पंजिका में व्यवहार करू सेटा कह जाय ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान ए ग्रेगोरियन कैलेंडर आसीबार बहु पूर्वरु मिशन देशर आदिवासी माने गोटे सोलार कैलेंडर प्रस्तुत करथिले जहा तांको ज्योतिर्विज्ञान रे उन्नत चिंताधारार परिचय केवल सेतिकी नुहे नील नदी रे केतेबेले बन्या आसीबो केतेबेले तमरा आसीबो
कौ समयटा शस्य उत्पादन करा जीवो ए सब उपरे तांकर यथेष्ट ध्यान धारणा थिला। कोन करथिले से माने ना से माने प्रत्येक वर्ष रे थिला मुख्यतः तीनोटी ऋतु इनंडेशन कमिंग फोर्थ हार्वेस्ट। इनंडेशन माने वर्षा प्लावन ऋतु एई समय रे नीला नदी रे वर्षा आसीबो एई समय रे चाष कार्य बंद बन्या छाड़ी गला परे आसीबो कोन ना कमिंग फोर्थ शस्य बपन ऋतु एई समय रे शस्य बीजକୁ तमे बुण तापर आसिला हार्वेस्ट शस्य अमल ऋतु। तेणु एहा छड़ा समय जानिबा पई से माने कोन करथिले ना दिन रे सूर्य घड़ी और राति रे जल घड़ी मध्ये व्यवहार करथिले। आउ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण विषय रे सूर्य पराग चंद्र ग्रहण हमर जेति काली पूजा रे गोटा हबो कोन काली पूजा टाला अमावस्या काली पूजा दिन तमर ग्रहण लागिबो पुणी कुमार पूर्णिमा दिन गोटे ग्रहण अछि सूर्य पराग चंद्र ग्रहण दीटा एथरे हबो एगुडा हम जेति जानि पारुछु। से समय रे प्राचीन मिसरिया देशर आदिवासी माने मध्य ए सब को जानि पारुथिले। तमे भाबो सेही प्राचीन युग रे तांकर एई जो स्वर्गीय बा हेवनली बॉडीज सन मून प्लैनेट स्टार ए मानकर गतिविधि को से माने एते सुंदर भाव रे अध्ययन करूथिले विज्ञान सम्मत उपाय रे अध्ययन करूथिले जहा हमकु सुचाई दिए जे से मानकर एस्ट्रोनॉमी बा ज्योतिर्विज्ञान रे बहु भाव रे से मानकर विकास घटिथिला। गणित और ज्यामिति गणित और ज्यामिति तमे जेतोले पढिबी ताकर आर्ट एंड आर्किटेक्चर सुविशाल पिरामिड जो बड़ बड़ पिरामिड सब निर्माण करा गला ताकर जो ज्यामितिका कोटा चतुष्कोण कोटा त्रिकोण बा कोटा वर्ग क्षेत्र कोटा आयत क्षेत्र ए जो ज्यामितिक उपस्थान गुडी का हम सितले खूब भल भाव रे उपलब्धि करू। तापर हरण गुणन मिश्रण फेड़ान प्लस माइनस एडिशन डिविजन ए जो हमें देखुछु कोन ना हमें देखुछु सब गुडी का से मानकु जणा थिला से माने गोटे कोन थिला ज्यामिति बा क्षेत्र माप प्रणाली। तेणु जमी जेतले बन्या आसुतला नील नदी रे जमी रो हिड गुडा धोई जाउतला फिर माप हबो केमती। तेणु से मानकु थिला ज्यामिति जणा थिला जे केमिति क्षेत्र माप करी मोर एति जमी तार सेति जमी से माने निर्णय करि पारुथिले। आ भेषज विज्ञान रे तमे तळे पिरामिड रे पढिबो पिरामिड ता काहे की तयारी होथिला मृत व्यक्ति शव को सुरक्षित करिबा पई जहा हजार हजार वर्ष परे मध्ये तळे आविष्कृत हला से गुडी को सुरक्षित अवस्था रे थिला जहा ताको भेषज विज्ञान रे उन्नत चिंताधारा रो परिचयक तमर एडविन स्मिथ से गोटे विराट कपिरास पुस्तक पाइथिले हम सेटा ब्रिटिश संग्रहालय रे संरक्षित हेई अछि जोथरे 48 प्रकार ऑपरेशन बा अस्त्रोपचारन कथा उल्लेख रहिछि। तने पिला माने तमे भाबी पारुछ जे मेडिकल साइंस रे मध्य जदियो से माने देहर उत्ताप मापिबा नाड़ी देखिबा हम जो देखुछु पल्स देखि कोछु ए सब सहित मध्य से माने परिचित थिले। ए सब हमकु सुचाई दिए जे प्राचीन काल रे हेले मध्य से मानकर भेषज विज्ञान रे यथेष्ट ध्यान उदाहरणा थिला। मिसरिया मानकर अवदान रो गोटे सबुठारो बलिष्ठ नमूना देखिबा को मिले कोनथरे ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर बा तांकर कला और स्थापत्य रे आमे जो कला स्थापत्य भास्कर्य चित्रकला एगुडी को सब कला विभाग रे अंतर्भुक्त। प्रथम आसीबा स्थापत्य स्थापत्य माने सौध स्थापत्य मंदिर स्थापत्य एगुडा को कहै जाय आर्किटेक्चर बिल्डिंग आर्किटेक्चर तमर टेंपल आर्किटेक्चर एगुडा हला तमर गोटे मॉल तयारी होछि मॉल आर्किटेक्चर तमर टॉकीज आर्किटेक्चर सिनेमा हॉल तयारी होछि प्लैनेटोरियम आर्किटेक्चर एगुडा तमर गला से माने निर्माण करथिले मिसरिया सभ्यता कहिले हमें गोटिए परिचित भाव रे पिरामिड कहिले लोक संगे संगे बुझिले मिसरिया सभ्यता कोन ए पिरामिड व्हाट इज दिस पिरामिड पिरामिड को कहछि पिरेमिस ए जो मिसरिया शब्द जहार अर्थ हला अति उच्च उच्चता विशिष्ट माने अति उच्च जिंस गोटी कोन सेटा ना पिरामिड मूलतः गोटिए समाधि कहार समाधि
ना मिस्र प्राचीन मिस्र अधिवासी माने पिरामिड निर्माण करथिले मुख्यतः गोटे विश्वास कौन से विश्वास ना से विश्वास है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल व्हाट इज ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल ताको हम ओडिया कले कहि परिबा मनुष्यर शरीर नश्वर आत्मा अविनश्वर मनुष्य आमे जो मनुष्यटी बसी तमे मते जो माने देखुछ तमे मोर बाहर शारीरिक गठनटी देखुछ किंतु हम सब जानु जे प्रत्येक जीवंत मनुष्य भितर रहिछि गोटे आत्मा एवं शरीर हमर जेतबे नष्ट हे जिवो मु जेतबे मरि जिबी मो शरीर नष्ट हे जिवो किंतु मो भितर जो आत्मा से अविनश्वर तार मृत्यु नाही तेणु जेहेतु शरीर नष्ट हो गले आत्मार मृत्यु नाही ताहले कौन हम ना मृत्यु पर आरंभ हुए आत्मार परवर्ती जीवन एवं से माने भाबुथिले यदि पार्थिव शरीरटा को मृत शरीरटा को कौन सी उपाय रे हम यदि सुरक्षित करि पारु तेणु से मृत व्यक्तिर आत्मा आ बाहर को न जाई सेही शरीर भितर रहिबो एवं सेथि पई से माने मृत व्यक्ति को गोटे बड़ पत्थर बाक्स जोटा को कहा जाए सार्कोफेगस तारी भितरे रखुथिले सेटा छिद्र छिद्र हेइथिला कारण से बाट दे कि आत्मा जीवा आसीबा करबो ता सहित से मृत व्यक्ति जहा खाद्य पसंद करथिले तार पसंद योग्य खाद्य वस्त्र एवं एपरि कि समय जो कृतदास बा जो माने भल पाउथिले ताकू मारी कि ताक सहित से माने दोथिले कोन होथिला ना ए जो लोकटीर बा मु मरि गला पर मोर जेतेबेले शरीर सुरक्षित हेई रहिला सेतेबेले मते ता मनुष्य कुआ जीवनी मोर एटा शरीरटा हला शव बा शव पिंड सेटाको सेमाने कहथिले मम्मी आ तुमे भाबो ए प्रकार रासायनिक प्रलेप से माने दउथिले से मम्मी बा शव पिंड रे जे हजार हजार वर्ष परे जेतेबेले मिशरीय सभ्यता लोकलोचन को आसिला जेतेबेले प्रत्नतत्वविद माने गले पिरामिड भीतर को कि देखिले गोटे सीक्रेट गोटे गुप्त प्रकोष्ठ रही ता भितर गोटे सार्कोफेगस बा पत्थर बाक्स भितर रही कौन ना मम्मी सुरक्षित हेई रही तामाने केते उन्नत विज्ञान सम्मत चिंताधारार परिचायक जे से माने कौन करथिले एवं विशेष करी पिरामिड निर्माण होथिला फेरोंकर स्मृति उद्देश्य रे गिजे ठारे फेरो खुपुंकर निर्मित पिरामिड सबुठारु सर्वबृहत पिरामिड खुपु खापरे जोसर ए सब फेरोंक भाई जो सब पिरामिड निर्मित होइतिला वर्तमान पर्यंत भी मुख साक्षी भावे से माने नील नदी अववाहिकार ए सब दंडायमान जहा मिशरीय स्थपति मानकर स्थापत्य विद्या रे तांकर ज्ञान कौशल ए सब को हमकु दर्शाई थाए तेणु तमे आमे देखुछु तांकर स्थापत्य रे गोटे प्रधान अंश थिला पिरामिड एवं आमे कोन देखुछु ना ए जो सब पिरामिड अछि मु तो विशेष वर्णना देबी नै समस्त इंडिविजुअल करी त माने ताको पढिबो ताकरे आसीला मंदिर ताले मंदिर माने देवादेवी उपासना मु धर्म विश्वास रे कमै कहिबी से माने बहु देवादेवी को उपास माने आराधना करुथिले एवं सेई देवता मानकर मंदिरटा कौन देवालय देवंकर आलय बा देवतांकर वासस्थान देवता माने सेठी रहंती तेणु सेमानकर जो विभिन्न देवादेवी को से माने पूजा करथिले सूर्य को भी पूजा करथिले ता सहित अन्य देवादेवी को मध्ये पूजा करथिले जोठारे हमें देखिबा को पाऊ ना द कार्नक ठरे द टेंपल ऑफ कार्नक द टेंपल ऑफ लक्जर द टेंपल एट अबू सिम्बेल एगुडा हला सब ना आ विशेष करी कार्नक मंदिर रे से गोटे हमें आविष्कृत हेची से जो ध्वंसावशेष हॉल ऑफ कॉलम्स स्तंभ कक्ष कौन ना 70 फुट उच्चता विशिष्ट से मंदिरटी सेत्र अछि कौन ना जो कक्षटी अछि स्तंभ कक्ष 136 टा स्तंभ अछि एवं ए सब मंदिर गात्र रे कौन सब हेची ना खोदित हेची फेरोंकर प्रतिमूर्ति देवादेवी का प्रतिमूर्ति एवं एई जो तमर लक्जर मंदिर देखी जो प्रत्नतत्वविद रोजेटा स्टोन पाठोद्धार करितिले फ्रांसिस काम्बोलियन से कौन कहथिले नो पीपल ancient and modern has conceived the art of architecture on a
grand scale, so sublime, so great, so grandiose as that of the ancient Egyptians. प्राचीन मिशरीयଙ୍କ परि एते विराट आकारे एते सौंदर्यपूर्ण एते रुचिसम्मत भावरे गोटे मंदिर निर्माण करिबा अन्य सभ्यतार आदिवासीଙ୍କ पाखरे परिलक्षित हुए नाही। वास्तविक मिशरीय स्थापत्य विशालता ओ गारिमामय संस्कृतिर वार्तावह कौन है। वर्तमान आम आसवा भास्कर्य को। ये गोटे कथा आम भास्कर्य माने विभिन्न मंदिर गात्र बा पिरामिड जो वाल ऑफ द पिरामिड रे जो सब मूर्ति बा चित्र खोदित करा जाए एवं जेमिति आर्किटेक्चर जे करे से हेले आर्किटेक्ट जे भास्कर्य करती से हेले भास्कर। हमर कोणार्क मंदिर टारे कोन अछि हम जो वर्तमान भी तार जगमोहन अछि इट इज ए वेरी excellent sculptural representation। तार मंदिर गात्र रे सब खोदेई हे कि जो सब मूर्ति करा हे छी ताहा तांकर शिल्पी चमत्कारितार एक अपूर्व निदर्शन। हम पिरामिड रो गात्र ये प्रवेश द्वार हम गोटे देखु जिनिस जे गोटे अद्भुत जिनिस सिंहर मूर्ति गोटे रही ता ऊपर मनीष मुंड ए प्रकार मूर्ति को कहा जाए से स्फिंक्स एवं ए स्फिंक्स गुडिक दुईटी मूर्ति तमे देखिबो जे कोनोसी पिरामिड भीतर को प्रवेश कला बेले स्फिंक्स किंतु कथा हला गिजे पिरामिड रे जो अछि सर्वबृहत पिरामिड गिजे सेठी जो स्फिंक्स भी अछि काहे के से माने स्फिंक्स मूर्ति निर्माण करूथिले यार तात्पर्य कोन यार वैशिष्ट्य कोन ए पर्यंत किंतु सेटा समाधान हेई पारि नाही। एहा छडा तमर कोन कोन आउ कोन कोन लिखे भास्कर्य आउ कोन कोन मिले हमर निदर्शन ना तांकर रानी हटशेपसूट तांकर आबक्ष प्रतिमूर्ति आबू सिंबेल रे जे उपास्य देवता आमन रा सूर्य देवतांकर प्रतिमूर्ति सम्राट अखनाटन सम्राट खापरे सम्राट जोसर से मानकर प्रतिमूर्ति सब खोदित हे रहिछि विभिन्न अंचल रे ए सब तांकर स्थापत्य कलार परिचायक आ ता छडा रहिछि तांकर चित्रकला पिरामिड समाधि मंदिर ए सब गात्र रे मध्य आमे अनेक चित्रकलार निदर्शन पाऊ। पिला माने त माने कोन एथरो धारणा करिछो आमे माने गोटे सुंदर धारणा पाउछु एया जे मिशरीय मानकर सांस्कृतिक ढांचा थिला अत्यंत बलिष्ठ एक बलिष्ठ सांस्कृतिक ढांचा उपरे से माने ताकर आरंभ करितिले कला और स्थापत्यर अपूर्व निदर्शन मान प्रतिष्ठा करी जाइचंती। चित्रकला क्षेत्र रे स्थापत्य क्षेत्र रे स्थापत्य क्षेत्र रे भास्कर्य क्षेत्र रे से माने जहा कला निदर्शन रखी जाइचंती वर्तमान मध्य ताहा प्रशंसा और गारिमार उद्रेक करे। तापर आसिले कोन ना वर्तमान आसिला धर्म विश्वास। धर्म विश्वास में देखिबा कोन ना धर्म विश्वास को हम जेतबेले देखिबा को पाउछु दे वर पॉलीथेइस्ट। कौन है पॉलीथेइस्ट ना पॉलीथेइस्ट है बहु ईश्वरवादी। The people of Egypt they were worshipper of many gods and goddesses। कौन है गॉड्स एंड गॉडेसेस आमे ताकर उल्लेख पाऊ ताकर धर्मीय पुस्तक रु जने देवतांकर नील नदी को से माने देवता हिसाब रे ग्रहण करिथिले एवं तांकर ना थिला ओसिरिस। सो ओसिरिस थिले नील नदी देवता जहांकर पत्नी थिले इसिस एवं एई पति पत्नीकर गोटे संतान थिला जहा थिला होरस। कहिछि जे ऐतिहासिक हेरोडोटस जहाँ को इतिहास जनक रूपे ग्रहण करा जाए ख्रीष्टीय 5वीं शताब्दी रे मिशरीय सभ्यता उपरे नील नदीर प्रभाव को लक्ष्य करी जे नील नदी को बहु भाव रे प्रभावित करिथिला मिशरीय सभ्यतार अभिवृद्धि उत्कर्ष साधन रे। तेणु से कहिथिले मिशर को नील नदीर दान। मिशरीय माने निजे मध्य नील नदीर वैशिष्ट्य प्राधान्य को उपलब्धि करी नील नदी को देवतार मर्यादा देथिले। तेणु नील नदी बा देवता हेले किए ना ओसिरिस हेले नील नदी देवता। तेणु ताको पई मंदिर थिला ताकर स्त्री हेले इसिस पुत्र हेले
होरस तेणु आम मैंने देखुचु कौन एमाने सब देवदेवी पर्याय लोक मान द्वारा आराधित हेउथिले तापर आछि कौन ना ज्ञान देवता हत युद्धर देवता सेखमत मु तुमको कही जे सेमानकर धर्म विश्वास हिंदू मानक परि आमे हिंदू मानक कह जाए बहु ईश्वरवादी कौन ना पॉलीथेइस्ट one who worships a number of gods and goddesses सेमाने पॉलीथेइस्ट मिशरीय माने थिले कौन ना बहु देवा देवीर कौन उपासक किंतु एठी आ गोटे कथा मु निश्चय कहिबी एई धर्मीय बहु ईश्वरवाद धर्मीय विश्वास रे गोटे विराट परिवर्तन आनिथिले तांकर अन्यतम प्रसिद्ध फेरो जहाँकर नाम थिला चतुर्थ एमेनहोटेप से कौन कले ना ए सब देवता देवादेवींकर पूजा को उठे केवल गोटे देवतांकर पूजा प्रचलन कले से देवता हेले आमन रा बा सूर्य तांकर युक्ति हैला पृथ्वीर सब शक्तिर आधार हेले सूर्य देवता न हेले हमर कोन हेई परिबो नहीं आम ए पृथ्वी गोटे दिन भी चली परिबो नहीं जेहेतु सूर्य सर्व शक्तिर आधार सर्व आलोकर केंद्र बिंदु केवल आम सूर्य को आमे आराधना करिबा तेणु सी जो धर्मीय विश्वास प्रचलन कले एटा को कह जाए कौन ना मोनोथेइज्म बा तमर एक ईश्वरवाद एवं मु जो कोइ अनेक सूर्य स्तुति से रचना करिथिले मु गोटे उदाहरण तुमको देई पारे ताको सूर्य स्तुतिर दिग्बलये तब आगमनी सौंदर्य हे प्रभु आटन मु कहि आटन रा जीवन आरंभ स्वर्गीय पूर्वभागे उदित बलय महिमारे परिपूर्ण जलस्थल जो भाग एगुड़िक सब संरक्षित हो रही एवं से गोटे सहर निर्माण करथिले तेल अमरना जहाँ नील नदीर निम्नांशर अवस्थित सेठी कौन है ना सूर्य पूजार से बहुत मंदिर प्रतिष्ठा करथिले एवं तांकर ए प्रकार चिंताधारा को जेतेबेले परवर्ती प्रत्नतत्वविद ऐतिहासिक माने इजिप्ट सभ्यता पर से माने पुस्तक रचना करूचंती से माने कोन कहउचंती से माने कहउचंती जे से जुगरे ख्रीष्टपूर्व समय रे गोटे लोक गोटे एकेश्वरवाद बा गोटे ईश्वर को आराधना करिवार जो मतवाद से प्रचलन करूचंती एहा निश्चित भाव रे तांकर उन्नत चिंताधारा को सूचित करिथाय कौन है ना से समय रे से बहु ईश्वरवाद बा बहु देवादेवी पूजा परिवर्ते से जो प्रचलन कले मोनोथेइज्म हमर ताप आसीबो प्रथम आसीबो कोन हिंदू धर्म तो बहु प्राचीन ख्रीष्ट धर्म दे आर मोनोथेइज्म से माने केवल गोटे देवता आराधना करती इस्लाम ता परे आसीबो से माने मध्य मोनोथेइज्म जो बड़ा परवर्ती समय रे जेतेबेले सभ्यता और संस्कृति रे यथेष्ट उन्नति आसिला सेतेबेले एकेश्वरवाद आसिला ता बहु पूर्वरु मिस्र सभ्यता रे चतुर्थ एमेनहोटेप ये जो एकेश्वरवाद प्रचलन करिथिले एहा तांकर उन्नत चिंताधारा एवं उन्नत दृष्टिभंगी उन्नत धर्मीय मनोभाव को सूचाई थाए तेणु आम मैंने देखुचु जे प्राचीन मिशरीय माने साहित्य संस्कृति धर्म कला विज्ञान गणित भेषज विज्ञान सेमिति सभ्यता और संस्कृति विभिन्न क्षेत्र रे से माने आनिथिले गोटे कौन अविस्मरणीय विस्मरण करी हब नहीं भूली हब नहीं सांस्कृतिक अवदान तेणु द कल्चरल पैटर्न्स से जो नीला नदी पाखरे जो आरंभ हैला ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइल द इजिप्शियन सिविलाइजेशन व्हिच स्टार्टेड सेटा एते मैच्योर्ड एते परिपक्व हैला जे समाज गठन प्रक्रिया सहित मध्य उन्नत सामाजिक जीवन उन्नत अर्थनैतिक जीवन उन्नत शासन व्यवस्था एवं मु कहितली जे फर्स्ट state formation the process of a first state formation in the ancient world it owes its origin to the time of Nile Valley civilization ए सबुथरे से माने गोटे अग्रगण्य भूमिका ग्रहण करिथिबा देखा जाय एवं आहुरी गोटे कथा मु तुमको कहिछि जे ए पृथ्वी रे कोनोसी जिंस चिरंतन नह
प्राचीन विश्व रे मिशरीय सभ्यता जहाँ निजर सामाजिक अवदान सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया व सामाजिक निर्माण शैली समाज गठन शैली और सांस्कृतिक अवदान द्वारा गोटे नूतन अध्याय सृष्टि करिथिला कालर गति रे धीरे धीरे से सभ्यतार विलय घटिथिला एवं एथिपाई बहु प्रकार किए प्राकृतिक दुर्विपाक किए नील नदीर बन्या किए बा किए आहुरी बलशाली प्रभावशाली वैदेशिक शत्रु आक्रमण से सब जहाँ ही था ना कहीं आम देखुचु जे नील नदी सभ्यतार विलय घटिथिला विलय घटिथिले मध्य the nation can die persons can die but civilization never dies सभ्यतार मृत्यु नहीं सभ्यताटार अवलुप्ति घटिथिला किंतु सेटा थिला परवर्ती समय रे तो ऐतिहासिक मान अध्ययन करूछंती सेमाने देखुछंती जे हमर आदिम पूर्व पुरुष माने एई भली भाबरे एक सभ्य उन्नत संस्कृति संपन्न सभ्यता प्रतिष्ठा करथिले जहाँ प्राचीन विश्वर इतिहास रे एक गौरवमय दीप्तिमंत अध्याय भाबे परिगणित तेणु आम इजिप्शियन सिविलाइजेशन पर आम तुम कोर्स रे आम जो देखुचु तापर आसुची कौन ना द सैंड सिविलाइजेशन इन चाइना ताले आम वर्तमान आफ्रिका रु चली आसिलु कोठी की ना वर्तमान चली आसिबा आउ गोटे प्राचीन सभ्यता एवं सेटा कौन हैला ना एशिया रो दक्षिण पार्श्व रे अवस्थित मु सब बेले तुम माने कहूची पिला माने आमे जते बेले पढिबा कौनसी सभ्यता बा कौनसी संस्कृति बा कौनसी देशर इतिहास आमे प्रथम कथा हला द फर्स्ट थिंग वी मस्ट do is to be acquainted with the geography of that particular region मु तुमको बारंबार नील नदी सभ्यता पढ़ाइला बेले कहूची जे केमिति मिस्र रो अवस्थिति एवं ए मिस्र रो अवस्थिति रे व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिवर नाइल तमे सेटा निहाती मन रे रखिबो एवं आहुरी गोटे कथा बते मु कहितली प्राचीन विश्व रो तमे पढिबो चारोटी सभ्यता गला इजिप्शियन सिविलाइजेशन तापर आसुची सांग सिविलाइजेशन इन चाइना तापर तमरा आसीबो द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स एसिरियन बेबीलोनियन एंड सासनाइड तनु एमाने सब गुडे हमें देखुछु कोन ना नदी सभ्यता वर्तमान आम देखुचु जे मिशरीय सभ्यता पर एशिया रो दक्षिण भाग रे अवस्थित चीन देश रे मध्य गोटे सभ्यतार विकास घटिथिला एवं से सभ्यतार जो सांग नेम ऑफ ए डायनेस्टी एवं तांको समय रे सांग डायनेस्टी रो राजत्व काल रे सांग राजवंश रो राजत्व काल रे चाइना सभ्यतार यथेष्ट अभिवृद्धि घटिथिबारु तमरो ए कोर्स करिकुलम रे रहिछि द सांग सिविलाइजेशन इन चाइना तेनो हमर प्रथम आज कोन हबो आमे कोन डिस्कशन करिबा द जियोग्राफिकल लोकेशन प्रथम कथा हला कोन ना 19 शताब्दी रे द्वितीय दशक रे कोन हला ना प्रख्यात जे प्रत्नतत्वविद टुंग शोपिन से कोन कले एवं लीची एले दुटा नाम चाइनीज ना गुडा तो ए टाइप रो दुई जन प्रख्यात चीना रो प्रत्नतत्वविद लीची एंड ट्वांग शोपिन से माने कोन कले ना चाइना रे जो हुनान प्रदेश अछि से हुनान प्रदेश रा एनियान थारे से माने खनन कार्य आरंभ करिबा परे गोटे विशाल प्राचीन सभ्यता लोकलोचन को आसिला एवं ए जो प्राचीन सभ्यता लोकलोचन को आसिला एहार निजस्व वैशिष्ट्य पई निजस्व वैशिष्ट्य और प्रमुख गुणावली पई एई सभ्यता निजर एक स्वतंत्र अध्याय सृष्टि करथिला विश्व प्राचीन विश्व सभ्यतार सूचीपत्र रे एवं पुणी मध्य एटा गुटिए थिला नदी सभ्यता होयांग हो यांगसी ज्ञान तेणु चाइना रा जो अच्छी गोटे चीन रो गंगा कह जाए होयांग हो नदी ताकि जोटा बेसी ताकू बन्या करे तो होयांग हला चीन रो दुख सेटा को कह जाए यांगसी क्या को कह जाए चीन रो गंगा साहाଯ୍य करे जाऊ हमर पढ़ी उठिला चीन सभ्यता
এবং এই চীন সভ্যতার আমি যেতବେଳେ দেখুଛୁ আমি କହିଛି ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟତାର ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିଯିବା କୋଉଠାକୁ ନା ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିଯିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନକୁ। କଣ ହେଲା ଆମର ଚୀନର ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପାଦାନ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଟିଏନସିଆ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପାନକୁ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ବାଇବେଲରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦାମ ଏଣ୍ଡ ଇଭ୍ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାଣକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ନରପତି ହେଲେ ଫୁସି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରାଜବଂଶର ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଚାଓ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଚୀନ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତାଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଚୀନର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରାଜବଂଶର ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ରାଜବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ସାଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନିଜସ୍ୱ କୃତିତ୍ୱ ଓ ନିଜସ୍ୱ ଗାରିମାମୟ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଗାରିମାମୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ହୋୟାଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏଇ ସଭ୍ୟତାର ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଯାହାର ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛୁ ରାଜା ଥିଲେ ସମାଜର ମୂଳମଣି। ଏବଂ ମନେ ରଖ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଚୀନ ଦେଶଟି ଯେହେତୁ ୟୁରୋପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ ଚୀନ ପାଖକୁ ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଛି କେଉଁ ସମୟରେ ନା ତମର ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାହିଦା ସେଇ ହୋୟାଙ୍ଗ ନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଯାବର ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ତେଣୁ ଏକ ସୀମିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଭାବରେ ଅଲଗା। କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ଥିଲେ ମୌଡମଣି। ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ବିନ୍ୟାସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ ଦ ହେଡ ଏବଂ ରାଜା ଯୋଉଠି ଥିବେ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ଦ ପ୍ରିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ and the class of the aristocrats they had a very prominent role ଯୋଉମାନେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସବୁ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଦ ପ୍ରିଭିଲେଜେଡ କ୍ଲାସ ଇନ ଦ ଚାଇନିଜ ସୋସାଇଟି। ସୁବିଧାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଇନା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଲା ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏଇ ଯୋଉ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାରିଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲେ କୋଉଠି ନା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ବିନ୍ୟାସରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ନା ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଣିକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ କାରିଗର ବର୍ଗ। ସମାଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାଗରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ନା କ୍ରୀତଦାସ। ଏଇ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ଯେମିତି ତମର ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ମୁଁ କହିଛି କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା ସେମାନେ କ୍ରୀତଦାସ ଧର ମୁଁ ଜଣେ ଫେରୋ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରୀତଦାସକୁ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୋତିରେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ମୋ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟ କ୍ରୀତଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତେଣୁ ମୃତ ଫେରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀତଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାରି ପୋତି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରୀତଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଓ ପୋଷଣ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ସେମାନେ ଯୋଉଟା ବେଠି ମାନେ କଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରମଦାନ ସେଇ ସବୁ
କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମାନେ କଣ करछु ना परिवार थिला आ गुटी बड़ कथा हला चीन सभ्यतारे से माने पारिवारिक जीवन को बहुत गुरुत्व देउथिले परिवार थिला सभ्यता और संस्कृति रो केंद्र बिंदु से माने उपलब्धि करिथिले मनुष्यर पारिवारिक जीवन उन्नत हेले मनुष्यर पारिवारिक जीवन रे सुख शांति दिले से माने हुए तो भलो काम करी सभ्यता और संस्कृति रो अभिवृद्धि आनी परिबे तेणु परिवार भितरे पिता थिले परिवार माने कोन पेट्रियार्कल फैमिली वेयर फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली परिवार भितरे तमरो कोन थिला ना परस्पर प्रति प्रीति ममता पूर्व पुरुषों प्रति श्रद्धा और सम्मान गुरुजनों प्रति भक्ति एवं मोस्ट इंपोर्टेंट इज द कोन ना जॉइंट फैमिली सिस्टम तेणु ए पारिवारिक संस्कृति रू चीन संस्कृति रे गोटे नैतिकतार प्रभाव थिला मने रख गोटे पारिवारिक संस्कृति जदि उन्नत धरणर हुए तमर मोरालिटी आ नैतिकता निश्चित भाव रे वृद्धि पाइबो तेणु प्राचीन चीन देशर अधिवासी माने एया उपरे विशेष गुरुत्व दउथिले एवं ई सांग डायनेस्टी जाक समय में चीन सभ्यतार अवदान पर आमे पढिबा सांग डायनेस्टी रो लोक माने थिले कोन ना सांग डायनेस्टी रो लोक माने राजा माने थिले समर कुशली तेणु सेमानकर कोन होथिला ना सैनिक माने समाज रे प्राधान्य लाभ जेमिति तमे ग्रीस सभ्यता रे पढिबा एथेंस और स्पार्टा स्पार्टा रे थिला सामरिक संस्कृति सैन्य मानकु विशेष भाव रे सामाजिक क्षेत्र रे अनेक गुरुत्व दिया जाउथिला सेमिति आमे माने देखुछु कोन ना ए जो सांग राजवंशर राजा माने युद्ध प्रिय थिबारु से माने कोन करूथिले ना से माने सैन्य माने समाज रे प्राधान्य लाभ करथिले एवं एहा छडा प्राचीन चीन रे आमे गोटे उपस्थिति लक्ष्य करू आउरी गोटे विद्वान गोष्ठी विद्वान आ पंडित गोष्ठी एवं चीन सभ्यता गोटे उच्च मानर सभ्यता थिला गोटे उच्च मानर सभ्यता थिबारु ने एई पंडित गोष्ठी निजर ज्ञान बुद्धिमता उच्च आदर्श ओ दर्शन द्वारा यथेष्ट श्रद्धा और सम्मान समाज रे हासिल करिबा सहित सेमानकर सामाजिक जीवन रे धर्म नैतिकता दर्शन ए सबुर मध्य प्राधान्य लक्ष्य करा जाय तेणु पिला माने आमे जतबेले सांग डायनेस्टी समय रे चीन रा सोशल फॉर्मेशन आमे देखुछु हमकु गोटे कोन धारणा आसुची ना गोटे उन्नत धारणा हमकु निश्चित भाव रे हम मन रे आसुची एवं तापरे कोन हैला ना अर्थ खाली तो सामाजिक जीवन उन्नत हेले हबो नाही सबुटी हमर दरकार व्हाट इज दैट द इकोनॉमी the finance always constitutes the backbone of civilization the prosperity the development of civilization to a great extent it depends upon a very favored economic growth जदि तमर आर्थिक अभिवृद्धि अनुकूल हेतिबो एटा हला गोटे कोन अर्थनीति हला गोटे सभ्यता को गोटे समृद्धि को बा गोटे देश को मेरुदंड स्वरूप आवर बैकबोन इट हेल्प्स अस टू मु वर्तमान सीधा है कि बसिची एटा कोन ना एटा मोर मेरुदंड पई मोर मेरुदंड दुर्बल होई गेले आई कैन नॉट स्टैंड in straight form I cannot sit in straight form similarly finance is just like the backbone of a country of a culture of a family of a human being also तेणु अर्थनीति टाको आमे केतेबेले we cannot set aside तेणु सामाजिक फॉर्मेशन सोशल फॉर्मेशन it will be more effective if there will be a flourished economy गोटे फ्लोरिस्ट इकोनॉमी थिले निश्चित भाव रे सेही सभ्यतार अधिक अभिवृद्धि घटिबे एवं ऑब्वियसली से समय त इंडस्ट्री आसी नाही से समय रे तापर एते ग्रोथ आसी नाही से माने डिपेंड करथिले एंशिएंट टाइम रे मेनली ऑन एग्रीकल्चर एवं कोन करा होतले ना से माने गोटे कोन करथिले ना जोठी रहउथिले से माने गोटे
प्राचीर परिवेष्टित आबद्ध करी गोटे जगार गोटे गोष्ठी भाव में रोते एका साथी जमी में चाष करी दुई तीन प्रकार शस्य उत्पादन करुले मुझे अन्य सभ्यता सहित एत भाव में जड़ित नथिले जहाँ थे निज निज भितर तेणु आम 10-15 जन लोक गोटे गोष्ठी करी गोटे जगह को आम घेरे रही कि यही अंचल आम समस्ते मिसिकी चाष कलु दुई तीन प्रकार फसल फलैलु एवं तापाई उन्नत मानर सार व्यवहार कलु एवं धान गहम बाजरा यह जलसेचन कलु एवं एथि सहित पनीपरिबा माछ मांस ए सब मध्य थिला आम खाद्य रुचिर गोटे गोटे अंग आउरी गोटे कथा ए जो प्राचीन चीन देशर अधिवासी माने खौम वस्त्र बा लिनेन क्लॉथ तमे आउरी तळे पढिबो चीन देशरु तमर गोटे बाट जाउतला सेटा खुआ जाउतला सिल्क रूट व्यवसाय वाणिज्य पे परवर्ती समय एई खेणी नुह तनु से माने खौम वस्त्र बा लिनेन क्लॉथ रो व्यवहार जानिथिले बयन ओ सिल्क शिल्प टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सिल्क इंडस्ट्री से माने कोन थिला नाउ द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल अनेक क्षेत्र में जो माने एग्रीकल्चर करू नथिले व्हाट वाज देयर वे ऑफ लिविंग their way of living it rested upon what it rested upon the weaving textile weaving and से कौन करथिले ना cloths and silk cloths आ ता छडा मध्य से मनकर आहुरी गोटे उन्नत अर्थनैतिक जीवनर परिचय मिले with the they had the presence of guilds जो मैंने सब व्यवसाय वाणिज्य करुथिले से माने गोटे निगम व्यावसायिक वाणिज्य निगम प्रतिष्ठा करथिले एवं ता माध्यम रे से माने व्यवसाय वाणिज्य करथिले ए सब व्यतीत तमरो काठ काम तमरो मृत शिल्प माटीर शिल्प धातु शिल्प थिला से मानकर अर्थनैतिक समृद्धिर कारण से माने कोन करथिले ना चाहा काच सिल्क वस्त्र फिम तमाकू चीनामाटी बासन इत्यादि को पृथ्वीर अन्य जगह को रप्तानी करुथिले एवं से माने चमड़ा निर्मित गोटे मुद्रा व्यवहार करथिले जा परवर्ती समय रे रूपांतरित होइथिला कागज मुद्रा को तेणु आमे माने कोन देखुछु ए glance at the economic life of the people of the ancient Chinese people gives us a very impressive idea about their economic standard तेणु तकर राजनैतिक जीवन सामाजिक जीवन अर्थनैतिक जीवन परे परे आमे माने आसी जिबा कोठी की ना आमे माने आसी जिबा वर्तमान the second part the cultural pattern सबु सभ्यता और संस्कृति जेतेबेले when we read them more importance is given to the cultural aspect the cultural patterns they have left for the rest of the world जेमिति से माने प्राचीन विश्वर पाइबा परवर्ती प्रजन्म पाई परवर्ती सूरी बा दायादंक पाई कोन कोन संस्कृति क्षेत्र रे छाडी जाई जंती से दृष्टि रे हम देखिबा गले एटा गोटे प्रत्न ऐतिहासिक सभ्यता इट इज ए प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन सो नेचुरली दे हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ राइटिंग जो मन को पाखरे स्मार्टफोन थिबो मारी देबो एवं देखिबो चाइनीज स्क्रिप्ट देखिबो तमे देखिबो जे चाइनीज स्क्रिप्ट गुडी का फुल 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 हे की वर्तमान भी अछि एवं एगुडा को कहा जाय कोन ना आइडियोग्राम पिक्टोग्राम एंड फोनोग्राम वर्तमान मध्य चाइनीज स्क्रिप्ट ताकि पढिबा इज डिफिकल्ट वर्तमान मध्य तमे नेट रे मारी की देखि परिबो द वेरियस टाइप्स ऑफ चाइनीज स्क्रिप्ट्स तेणु चाइना आमे जो सभ्यता टिके पढुछु चाइना अंडर साइंस सिविलाइजेशन we find out tremendous development was made in the field of writing but this writing was bit difficult in comparison to hieroglyphic writing the hieroglyphic writing invented by the Egyptians they were comparatively easier and simpler to follow than that of the Chinese system of writing. They had to follow for Chinese to understand the Chinese system of writing. You had to follow a complex
प्रोसीजियोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजियोर प्रथम कोन मनर कथा छवि माध्यम रे आसीबो सेटा हला छवि संकेत तापर आसीबो भाव संकेत आइडियोग्राम एवं तापर आसीबो ध्वनि संकेत एमिति करी से माने 55,000 संकेत सृष्टि करथिले जहा समय क्रमे ह्रास पाई तमरा आसीला कोठी की 4,000 तेणु तांकर जो सिस्टम ऑफ राइटिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट it is very complicated and a complex process they followed it anyhow but they now deserve the credit that in ancient civilization during Shang dynasty this system of writing it developed to a great extent तापर अछि तमरा कोन ना कोथरे लेखुथिले ना हमर आसीगला कलम काली ओ कागज कौन करा प्रथम अवस्था काठ फलक बा बाउंस पातर कागज बाउंस रे पतला पतला पात करिकी तापरे से माने कोन करथिले ना मुनिया बाउंस काटी देई से माने मिसे लेखुथिले कोन रे लेखथिले पानी अठा एवं मेनली से रोसई रो कला को से माने मिसेई की जोटा लेखुथिले जो सेटा हला काली तापर आस्ते आस्ते आरंभ हला कोन ना परिवर्तन जेते बेले आसिला से माने आरंभ कले ओट लोमर निर्मित तुळीर व्यवहार से माने करूथिले एवं एई सभ्यतार बाउंस पात्र काठ फलक परिवर्ते तुली साहाय्य रे सिल्क वस्त्र पर चाइना रे बहुत सिल्क वस्त्र प्रस्तुत होतिला एवं सेई तुली साहाय्य रे से माने कोन करना सिल्क वस्त्र ऊपर लिखिबा आरंभ कले जहा समय क्रमे खूब दीर्घस्थायी हला एई चिंताधारा कोन लेखिले तापरे लेखिले गछर बळकळ छण पुरुणा छिंडा कुटारू से माने आरंभ कले कोन ना कागज निर्माण प्रणाली एई दृष्टि रे देखिबा को गले चीन सभ्यतार अधिवासी माने थिले कोन प्रथम कागज निर्माता इजिप्ट सभ्यतार अधिवासी माने कोन थिले पेपिरस वृक्षर छालकू ताकू काढी ताकू पतला करी फर्द आकार करी तापरे लिखुथिले किंतु ए माने कोन कले नाइ जो कागज तयारी करिबा पई जो पुरुना छिडा लुगा गछर बळकळ कुटा ए सब को मिसेई से माने जो पद्धति रे से माने आरंभ कले कोन आरंभ कले ना कागज प्रस्तुति आरंभ कले तनो वर्तमान जो आधुनिक कागज बा पेपर बोली आमी जोटा को कहूछु सेटा चीन सभ्यतार से क्रेडिट आमे कहा को दबा ना चीन सभ्यतार अधिवासी माननकु एवं जहा परवर्ती समय रे अन्य सभ्यतार अधिवासी मानक द्वारा अनुसृत होइथिला तेणु आमे माने देखुछु जे चीन सभ्यता सांग डायनेस्टी बा सांग राजवंशर आधिपत्य समय रे जो चीन सभ्यतार अभिवृद्धि घटिथिला तार सांस्कृतिक अवदान आलोचना कला बेले आमे बहुत गुडी कथा इथिरु जानि पाडिबा आजि मु तम काना हमर समय सरी आसिलानी मु तमको डिटेल को जिबि नाही खाली मु तांकर सांस्कृतिक अवदान रो केवल गोटी अंश पर आलोकपात कली द सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड द यूज ऑफ इंक pen and paper and the credit goes to the people of ancient China who for the first time invented created the modern paper. The Egyptians no doubt gave the idea but their paper was made from the roll of a papyrus whereas in the true sense of the term the ancient Chinese by using the torn cloths straw and the leaves of the tree they now prepared modern paper. So we find out that in the proto-historic period when system of writing it now got an impetus the people of different civilizations they in various areas hereafter you will read about the Babylon and Assyrians that is in the Western Asia that is in Western Asia which flourished on the bank of the river Tigris and Euphrates. Tigris और Euphrates नदी कूल रे जो आरंभ होबो बेबीलोनियन एसुरिया सभ्यता तमर सेगुडा अछि गुडा सब नदी सभ्यता एवं आमे माने कोन देखुछु
जे सेमाने जेतबेले प्रथम गोटे सभ्यता आरंभ होची सेमानकर समाज गठन प्रक्रिया सेमार गोष्ठीगत जीवन को सेमाने बेसी गुरुत्व दउचंती कारण समाज रहिले समाज भितर जे माने सुरक्षित अवस्था रे रहिले हमर गोटे मनुष्य कभी एका रही पारे ना कोन अछि मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी तण आमे गोटे समाज भितर रहिबा आमे गोटे दल भितर रहिबा गोटे ग्रुप भितर रहिबा मते नै कि पहाड़ ऊपर एका छाडी देले मु भी तो जिदिरे किछि दिन रहि पारे मते किंतु भलो लागियो नाही कारण मनुष्य समाज भितर रहिबा चाहे तण ए जो प्राचीन सभ्यतार आदिवासी माने समाज गठन तांका भितर हम देखुछु जे धीरे धीरे गोटे फल निर्दिष्ट रूपरेखा नेला एवं तमारकर सामाजिक स्थितावस्था सुदृढ़ हेबा परे परे से माने कोन करथिले ना सांस्कृतिक अवदान क्षेत्र रे बहुत माने कोन जोटा को आप रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन से माने अनेक असाधारण अवदान आनिचंती जहा कि ए पर्यंत आधुनिक युग रे मध्य आमे तांको प्रशंसा न करी रही पारुना तण या परे आमे माने देखिबा जे चीन रो अन्य सांस्कृतिक अवदान एवं एगुडा हमर कोन होची ना तमरो एगुडा अछि कोन ना ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ए इजिप्शियन सिविलाइजेशन को चाइनीज सिविलाइजेशन एगुडा आसुची हमर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन रे मु कहिची जो धातु गुडी से समय आसिला ब्रोंज कॉपर टिन एंड लीड एगुडा जनरली सॉफ्ट मेटल एगुडी को कोमल धातु किंतु तापरे जेतेबेले आसीबो आयरन यूज ऑफ आयरन आहुरी केमिति लोक मानकर जीवन धारण शैली रे प्राचीन विश्व रो जो सभ्यतार लोक जीवन धारण शैली रे अनेक परिवर्तन आसी जीवो एवं कारण आयरन इज ए हार्ड मेटल आयरन बा लुहा आसीबा पर मु तुमको उदाहरण देखि कहिबी जे केमिति तमर सब हबो पिला माने वर्तमान पई देखि धन्यवाद।